जय जिनेन्द्र विपिन जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपका वीडियो भी आ गया। जय जिनेन्द्र विपिन जी, आज हमारे बीच अतुल शाह हैं, जैना के चेयरमैन। वो आपके लिए कुछ आपका इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। जय जिनेन्द्र। अतुल भाई, प्लीज गो अहेड। Jai Jayendra, everyone. First of all, I would like to thank everyone joining this Stanika Parva, celebration. This is today's our like third day. We see that lots of members are joining daily. I think if I'm correct, I think most almost 200 sessions is joining through the uh, either YouTube or the Zoom. First of all, I like to really talk about a little bit about Jaina. Um, you all know about the Jaina, our goal is how can we help our Jain centers. Our goal is how can we empower our Jain community across the North America. Right, our local Jain centers are the heart of our community, and they preserve our values, educate our children, right, brings our family together. And when our Jain centers grow stronger, actually Jaina also grows stronger, right? And that is the reason that this year we started the committee called Jain Center Assistant Committee, which helps the new Jain center or the expansion of any Jain centers throughout the North America. Recently, I visited almost four, five, places. I went to Indiana, Minneapolis, Portland, Seattle, and Vancouver. I just came this morning from the Vancouver. Um, my goal is that basically, how can we, create a good bonding between Jain community, Jain centers, and the Jaina. This year also we started the religious committee, right? And this religious committee, you can see that a lot of our religious program throughout the year they are taking care. We just launched the health and wellness service committee, which will be uh, helping us out how living the Jain way of life, yoga, meditation, Ayurveda, and also some other any health related session is happen will be happening. Also started this year student loan committee, and we just released about 16 student. We gave about $10,000 per student to needy people, need student, this year. This week, end of this week, actually, we're gonna have a Jain Metro Mundial happening in Bay Area. Uh, it got all completely full. We had to increase more seats, but still we are a lot of people are in waiting list. This week also will be happening the AI session. How can you use the AI in your daily life? We I'm also 63-year-old, but a lot of our folks are in getting into the 60 plus, right? And then we need to know how to use the AI and how can we use in our daily life health also for our health, right? So this year we are creating great lot of different session, and I think you should always take advantage of that. um, Also at the same time we need to create a Jaina very financially strong and sustainable. So we also have created this Jaina benefactor programs, and soon you will be receiving the email of that how can you part of the Jaina benefactor program. Even tomorrow we will be sending the announcement for the scholarship, that needy people will get a scholarship. So that announcement will be going tomorrow. So throughout the year, how can we do these all these different programs? Looking ahead in 2027, we are working on planning on to the yatra in India for the North India and even South India. North India, nearby Ayodhya and all other places. At the same time, South India, Mangalore to Bangalore.
I've been to Bangalore in 2024, and all the places, even Hampuja and Mudbidri, all those places I visited, right? So my goal is that as even Jaina Executive Committee, our goal is that how can we create a good bonding, right? And this is, you all are helping us out, working out together with us this, in this goal. And I like to really thank all of you about that, achieving this goal slowly and really. And also, all know about that convention is coming up, next year, Jaina convention. Even YJ convention just happened, and that registration got pulled in 8 minutes. So, and also YJP convention happening in this October. So these are the all Jaina programs and everything that I wanted to let you know about that happening in North America. Um, Again, back to these flag sessions. Pandit Vipin Jain Shastri is a renowned spiritual orator, Jain philosophy scholar, and motivational speaker. Since 1995, he has delivered lectures, conducted workshops across India and abroad, including USA, Canada, UK, and the UAE. He is dedicated to promoting Jain philosophy, spirituality, and Indian culture worldwide. So please join me in extending a warm welcome to our Pandit Jain Shastriji, and thank you for very much for giving me this time for talk about the Jaina and also welcoming the Pandit ji. Thank you. Thank you. Thank you very much, Atul bhai. It was a nice short description about Jaina. डेफिनेटली विपिन जी, आप आज अपना तीसरा दिन का शुरू होगा और Q&A के लिए लास्ट में 5 to 10 मिनट्स रखे जाएंगे. किसी को क्वेश्चन हो तो वो चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि सब लोग म्यूट पे होंगे, और या फिर हैंड रेज कर सकते हैं at the end of the And lecture. by the way, I met Bipinji in Chicago, and also I met Bipinji in New Jersey. So thank you very much, Bipinji. जय जिनेन्द्र। Jai Jindra. ठीक है विपिन जी, शुरू करें. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अष्टानिका महापर्व का मांगलिक अवसर चल रहा है और हम और आप जिन शासन की छत्र छाया में अपना जीवन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, और वह भी आध्यात्मिक जीवन की जिनवाणी में जिन शासन के संदर्भ में क्या कहा गया है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 टॉपिक्स लिए, एक जैन धर्म और अष्टानिका पर्व, जैन धर्म के फंडामेंटल की बात की थी। कल हमने जिन और जैन इन 2 शब्दों पर विस्तृत चर्चा की थी, और उपलब्ध आगम प्रमाणों में जिन की क्या परिभाषा है, जैन की क्या परिभाषा है, उससे हमने ये महसूस किया कि वास्तव में ये पवित्र मार्ग किसी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय इसका नहीं है। ये मार्ग तो हर उस जीव के लिए ओपन है जो अपनी आत्मा को विशुद्ध करना चाहता है, जो संसार सागर के परिभ्रमण से थक गया हो, उसके लिए ये शासन शरणभूत है, और ये धर्म, मोक्ष और मोक्ष मार्ग की यात्रा को सानंद संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिनके संदर्भ में समझ के हमने ये भी समझ लिया कि ये व्यक्तिवादी धर्म नहीं है, और जिन जो हैं वे वीतरागी हैं, जिन जो हैं वे सर्वज्ञ हैं, जिन जो हैं वे हितोपदेशी हैं।
अगर हमने कल के सेशन को नहीं समझा और जिनके संबंध में हमारी यथार्थ भावना और श्रद्धा नहीं आई, तो आज जो टॉपिक चलने वाला है वो शायद हमारे गले नहीं उतरेगा। क्योंकि जब भी हम कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे, लोक के ब्रह्मांड की रचना की बात करेंगे, या कहाँ कहाँ कौन कौन से द्वीप समुद्र हैं, मध्यलोक ऊर्ध्वलोक अधोलोक में कहाँ कहाँ क्या क्या है, नंदीश्वर की रचना किस तरह की है, क्योंकि ये आपकी इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें दिखाओ आंखों से, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है और विस्तार से वर्णित है, और जिन्होंने वर्णन किया है और जिस रास्ते से हमारे पास ये उपलब्ध हुआ है वो रास्ता बहुत पवित्र है। ये समस्त कथन जिनेंद्र भगवान द्वारा किए गए कथन होने से हम इन्हें प्रमाणिक मानते हैं। कई बार ये कंट्रोवर्सी हो सकती है कि क्या गारंटी है कि ये जो हम शास्त्र लिए घूम रहे हैं ये जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं या नहीं कहे हैं, और कहे हैं तो इस बारे में सच्चाई का क्या रास्ता है। तो मैं फिर से यही कहूंगा, कल वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण था। हमने ये बात कही थी कि झूठ बोलने के लिए दो फैक्टर चाहिए मिनिमम, आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण है, दो शब्दों में कह सकते हैं, एक मोह और एक अज्ञान। मोह का बहुत विस्तार है। मोह माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, किसी भी कषाय के वशीभूत होकर हम झूठ बोल सकते हैं। गुस्से में हम झूठ बोल सकते हैं, मान कषाय होने पर हम झूठ बोल सकते हैं, मायाचारी तो झूठ से ही बनी हुई है, लोभ होने पर हम झूठ बोल सकते हैं, हास्य में हम झूठ बोल सकते हैं, रति में हम झूठ बोल सकते हैं, अरति में हम झूठ बोल सकते हैं, शोक में हम झूठ बोल सकते हैं, भय में हम झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ बोलने के लिए एक पहला कारण जो संसारियों के पास उपलब्ध है वो है मोह। मोह के कारण झूठ बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोह नहीं भी हो, राग द्वेष नहीं भी हो, लेकिन तत्संबंधी अज्ञानता हो, हमें पता ही ना हो, फिर भी हम बोलें, तो वो जो हम बोलेंगे वो अज्ञानता से बोलेंगे। तो या तो अज्ञानता से झूठ बोला जाता है या मोह से झूठ बोला जाता है। और कल हमने जो सेशन अटेंड किया उसका सार ये था कि जिन जो हैं, जिन्हें हम अरहंत कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम आप्त कहते हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जिनके हजारों नाम हो सकते हैं लेकिन लक्षण एक ही है, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता। तो ये जो जिन हैं वे वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता का अर्थ क्या था? सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाले, सर्व माने सबको जानने वाले। और जब हम कहते हैं सबको जानने वाले, तो इस वजन में बहुत इस शब्द में बहुत रहस्य है। सबको माने सबको, फिर कुछ बच नहीं सकता है, फिर कुछ रह नहीं सकता है। वास्तविक त्रिकालज्ञ हम उन्हें ही कहेंगे जो भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को, वर्तमान में घट रही घटनाओं को और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को एक साथ एक समय में जान सके। तो अगर हम सर्वज्ञता के स्वरूप को ठीक ठीक समझ गए होंगे तब तो हमें संपूर्ण जिन शासन बहुत सुगम और सरल लगेगा। और सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं समझे होंगे तो हमें रह रह के ये प्रश्न उत्पन्न होंगे, यार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जैनाचार्यों ने न्याय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वहां सबसे पहला विषय है सर्वज्ञता। और सर्वज्ञता को उन्होंने युक्तियों से, लॉजिक से सिद्ध किया है कि सर्वज्ञता होती है। और फिर यह सिद्ध किया है कि वो सर्वज्ञता अरहंत परमात्मा के पास है। पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की है, फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की है। उनके अपने हेतु हैं, बाधक कारणों का अभाव और सद कारणों का सद्भाव। तो बाधक कारणों के अभाव की चर्चा भी शास्त्रों में की है और साधक कारणों की चर्चा भी शास्त्रों में की है। मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं 2-5 मिनट में सर्वज्ञता के विषय में, ताकि आगे सारे रास्ते सुगम हो जाएंगे। तो एक सबसे पहला जो पक्ष है वो ये पक्ष आता है कि आप कहते हो भगवान सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हमने तो नहीं देखा है। सीधा छूटते ही व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को या अपनी क्षमताओं को प्रस्तुत करता है, हमने नहीं देखा है। तो अब मुद्दा यह है, हम उससे पूछेंगे भैया आपने कहाँ नहीं देखा है? इस काल में नहीं देखा है या किसी भी काल में नहीं देखा है?
इस काल माने वर्तमान काल, जिसको हम पंचम आरा कह रहे हैं, पंचम काल कह रहे हैं। यहां नहीं देखा है बस सर्वज्ञ भगवान को, या किसी भी काल में नहीं देखा है सर्वज्ञ भगवान को। तो यदि आप कहोगे कि यहां नहीं देखा है, तो हम भी सहमत हैं, यहां सर्वज्ञ परमात्मा वर्तमान में उपस्थित नहीं है। और यदि आप कहोगे किसी काल में नहीं देखा है, तो हमारा प्रश्न होगा कि ये आप कैसे कह सकते हो कि किसी काल में नहीं देखा है? क्या आप सर्वज्ञ हो? यदि भूतकाल में भी सर्वज्ञ नहीं थे, वर्तमान में भी सर्वज्ञ नहीं है, भविष्य में भी सर्वज्ञ नहीं है, ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है? जो सर्वज्ञ होगा। तो कहने का अर्थ यह है, भले ही आपको प्रथम चरण पर यह साबित करने के लिए कुछ ना हो कि सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर यह भी साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है कि सर्वज्ञ नहीं है। अभी हम बीच में हैं। तो पहले हम निषेधात्मक निषेध कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये तब कह सकते हो जब आप सर्वज्ञ होंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कह सकते हैं। यदि आप कहोगे इस क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी ये मानते हैं, शास्त्र भी ये कहते हैं, इस क्षेत्र में, अभिभरत क्षेत्र में, आर्यखंड में सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन आप ये कहोगे किसी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, तो किसी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है ये स्टेटमेंट आप कब दे सकते हो? जब आप सर्वज्ञ हो। तो आप सर्वज्ञ हैं तो हम आपको नमोस्तु कह देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ के बिना ये कथन नहीं कर सकते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाधक कारणों के अभाव में हम ये कहते हैं कि हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ होते हैं ये तो सिद्ध करो। तो न्याय शास्त्रों में बहुत विस्तार से आप सर्वज्ञ सिद्धि वाले प्रकरण को पढ़ेंगे तो वहां पर यह वर्णन किया गया है कि सूक्ष्म विषय होते हैं, दूरस्थ विषय होते हैं और अंतरित विषय होते हैं। सूक्ष्म माने कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं, जैसे पुद्गल का परमाणु। परमाणु बहुत सूक्ष्म है, परमाणुओं को मिला करके स्कंध बनता है और स्कंध हमारी आंखों से दिखता है। जैसे ये प्लास्टिक का डब्बा आपको दिख रहा होगा, बराबर है? तो ये क्या है? ये स्कंध है। अगर इसे टुकड़े करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, तो लास्ट में जो परमाणु बचेगा ना, वो परमाणु क्या है? इसी का अंश है, लेकिन वो सूक्ष्म होगा, वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा। उसके लिए फिर हो सकता है आप किसी मशीन से देखने की कोशिश करें, मशीनों की भी लिमिट है। सूक्ष्म परमाणु केवल ज्ञान का विषय है, मतलब इतना इतना सूक्ष्म है वो। तो परमाणु से स्कंद, स्कंद से चीजें बन जाती हैं। अब हमको परमाणु तक पहुंचने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। दूसरा विषय दूरस्थ, कि जैसे सुमेर पर्वत की, आज हम अष्टानिका पर्व की चर्चा करने वाले हैं। वो नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? कि पहले जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धात्कीखंड द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर द्वीप। 7 द्वीप के बाद 8वें नंबर का जो द्वीप आएगा उसका नाम नंदीश्वर द्वीप है। तो दूर बहुत है। हम तो भरत जम्बू द्वीप के ही यदि 6 क्षेत्रों की बात करेंगे तो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र बहुत दूर है। हम यहाँ ऐसे चल के नहीं जा सकते हैं। ऐरावत क्षेत्र हम चल के नहीं जा सकते हैं। अभी हम उसकी आपको चित्र दिखाएंगे तो ख्याल में आएगा कि कौन कहाँ है। अभी सिर्फ बात ये कर रहे हैं, कुछ विषय सूक्ष्म हैं, कुछ विषय दूर हैं और कुछ विषय अंतरित हैं। अंतरित है माने काल बीत गया है, जैसे राम, रावण, आदिनाथ, संभवनाथ, ये बहुत पहले हो चुके हैं। अच्छा, ये सब हैं, ये कैसे सिद्ध हुए? सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये कैसे पता चला? सूक्ष्म पदार्थ आपको तो दिखते नहीं। तो न्याय शास्त्रों में कहा है कि सूक्ष्म पदार्थ यद्यपि हमें इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, लेकिन अनुमान प्रमाण से दिखते हैं। अब हालांकि लोक में अनुमान शब्द का अर्थ भी बहुत हल्का ले लिया है। अनुमान माने लोग तुक्का बोलते हैं, अनुमान माने रफ आइडिया। जैन शास्त्रों में अनुमान शब्द का जो प्रयोग किया है वो प्रमाण के रूप में किया है, और अनुमान जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो युक्ति के माध्यम से किया जाता है। जैसे मेरा अनुमान है वहां आग लगी है, तो हमने पूछा भाई आपको अनुमान कैसे हुआ? मुझे धुआं दिख रहा है, तो धुआं दिखने से आग का अनुमान हुआ। आग नहीं दिख रही है, धुआं दिख रहा है। अनुमान किसका हुआ? आग का। दिख क्या रहा है? धुआं। तो चूंकि धुआं है
इसलिए वहां आग होगी, क्योंकि बिना धुएं के, धुआं है यहाँ आग है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति सूत्र है, ये समझो लॉजिक है, ये न्याय है, ये युक्ति है कि जहां धुआं है वहां अग्नि होगी। तो चूंकि अग्नि हमें नहीं दिख रही है, फिर भी हम ये मानते हैं कि अग्नि है। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अनुमान का विषय है, वो अनुमान प्रमाण से साबित है। तो जिस तरह से जो विषय हमें इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, वे विषय भी अनुमान से जाने जाते हैं। क्योंकि जो विषय अनुमान से जाने जाते हैं, जैसे मुझे यहां से अनुमान कर रहा हूं कि वहां अग्नि है, लेकिन वहां के आसपास के लोग तो अग्नि को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो तो सामने देख रहे हैं अग्नि को। तो जो मेरे लिए अनुमान का विषय है, वो किसी के लिए प्रत्यक्ष का विषय है। पॉइंट समझना। थोड़ी सी चर्चा जैसे जैसे दिन आपने आगे बढ़ेंगे सूक्ष्म हो सकती है, जिनके अभ्यास होंगे उनको ख्याल में आ रहा होगा, नहीं भी होंगे तो ख्याल में आ जाएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सर्वज्ञता की, कि सर्वज्ञता तक पहुंचने के लिए हम ये व्यवहारिक रूप से समझें कि जो जो इंद्रिय विषय प्रत्यक्ष विषय नहीं है, वे विषय भी हैं। इंद्रियों की क्षमताएं बहुत सीमित हैं। हम छत पर खड़े होकर कितना देख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना सूंघ सकते हैं, कितना छू सकते हैं, कितना चख सकते हैं, उसकी लिमिट है। लेकिन पदार्थ तो उससे आगे हैं। हम छत पर खड़े होकर 10 किलोमीटर देख सकते हैं, लेकिन धरती तो हजारों किलोमीटर की है, हमको नहीं दिख रही है, लेकिन है। कैसे है? कि अनुमान से है। अनुमान माने तुक्का नहीं, अनुमान माने संभावना नहीं, अनुमान माने अंदाजा नहीं, अनुमान माने प्रमाण। क्योंकि जो विषय हमें युक्तियों से समझ में आते हैं, उन विषयों की प्रमाणिकता अनुमान से की जाती है। तो हमने अग्नि का निश्चय किया कि वहां अग्नि है, क्योंकि मेरे अनुमान का विषय है, तो वो किसी के प्रत्यक्ष का विषय है। तीनों लोक, तीनों काल, जगत में जितनी भी सत्ताएं हैं, वे सभी सत्ताएं वीतरागी परमात्मा के ज्ञान में प्रतिभाषित होती हैं, जानने में आती हैं। सर्वज्ञ परमात्मा उन्हें जानते हैं। अब दूसरी बात बताता हूं कि जब सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि होती है, तो उसमें एक प्रयोजनभूत विषय आता है और एक अप्रयोजनभूत विषय आता है। प्रयोजनभूत विषय उसको कहते हैं कि जिससे हमारा मोक्ष आधारित है, उसके बिना हम मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। जैसे 7 तत्वार्थों का श्रद्धान, ये प्रयोजनभूत विषय है। यदि हम 7 तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं करेंगे, तो हमारी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तत्वा सूत्र महाशास्त्र के प्रारंभ के ही अधिकार में ये लिखा है, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी सम्यक दर्शन के लिए आपको तत्वा श्रद्धान चाहिए। और तत्वार्थों में वर्णन किसका है? जीव का, अजीव का, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्वार्थों का वर्णन है। इन तत्वार्थों का स्वरूप समझकर मैं आत्मा हूं, मैं पर नहीं हूं, यह निर्णय करके जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अब अजीव का वर्णन बहुत विस्तार लिए हुए है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य तो ये हैं, और एक जीव है। तो ये पांचों द्रव्य अजीव हैं। अब पांचों द्रव्य अजीव हैं, लक्षण रूप से तो हम जान सकते हैं। एक एक अजीव को जानने की इंडिविजुअल आपको अति आवश्यकता नहीं है, या यूं कहें अनिवार्यता नहीं है। आपके जानने में कोई विषय आ जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब तक सभी पुद्गल द्रव्यों को नहीं जानेंगे सम्यक दर्शन नहीं होगा। पुद्गल के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन सभी पुद्गलों को नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। धर्म द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानेंगे, अधर्म द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानेंगे, काल द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानेंगे। स्वरूप जानना अलग विषय है और संख्यात्मक जानना अलग विषय है। भारत में रहने वाले अनेकानेक मनुष्य हैं, तो हम मनुष्यों के स्वरूप को जानते हैं, शास्त्रों से मनुष्य गति का क्या स्वरूप है। लेकिन एक एक मनुष्य को मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, इससे बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल ज्ञान में वह प्रत्यक्ष भासता है। अवधि ज्ञान आदि में भी एक लिमिटेशन तक आप जान सकते हैं। मत्स्य ज्ञान की क्षमताएं बहुत कम हैं। तो इस तरह से प्रथम बात जो है, जो प्रकरण प्रारंभ हो उससे पहले, कि हम यहाँ बात करेंगे सर्वज्ञ ने जो बताया है उस संरचना की, उस ढांचे की। हो सकता है वर्तमान का जो विज्ञान जो कुछ भी कहता है, उससे कहीं कहीं सहमति हो और कहीं कहीं विरोध हो। तो आप परेशान मत होना। परेशान इसलिए मत होना
क्योंकि विज्ञान जो कह रहा है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष कह रहा है, उसे जो दिख रहा है, उसे जो भास रहा है वो कह रहा है, और हम जो कहने जा रहे हैं वह सर्वज्ञ कथित है। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं उपलब्ध जिनवाणी के आधार से कह रहे हैं। आपको मालूम है जिनवाणी का बहुभाग नष्ट हो चुका है, अनेकानेक शास्त्र विलय को प्राप्त हो गए हैं। तो सर्व कथन हमारे पास भी पूरे उपलब्ध नहीं है जो सर्वज्ञ ने समोसरण में कहे थे। द्वादसंग हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है। चूंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट में नहीं उतर सकते हैं कि आओ हम तुम्हारे साथ बहस करते हैं। बहस हम तब करें जब हमारे पास फाइल पूरी हो। इसलिए हम इस बहस में ना पड़ते हुए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या मान रहा है, जैन दर्शन के शास्त्रों में तीन लोक का क्या वर्णन है, हम उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और ये विश्वास के साथ प्रारंभ करते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कहा है वह परम सत्य कहा है। क्योंकि जो मोह नहीं है, जिसके पास मोह नहीं है, जिसके पास अज्ञानता नहीं है, असत्य कहने का कोई चांस ही नहीं है। हमारी समझ में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है अलग विषय है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कदाचित बहुत बारीकी से नहीं भी समझ में आया तो आपका मोक्ष मार्ग नहीं रुकेगा, आपका मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। एक ज्ञान को निर्मल करने के लिए सारे विषय हैं तीन लोक के। हम कोशिश करते हैं वर्तमान में पूरे लोक संरचना की और नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा जानबूझ के, क्योंकि उसका फिर कोई अंत नहीं है। अगर हम इंची टेप लेके शुरू करेंगे तीन लोक को तो शायद पूरा मनुष्य भाव निकल जाएगा, फिर भी हम तीन लोग को नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके एक एक स्टेप पर आपको बहुत विस्तार शास्त्रों में उपलब्ध है। फिर भी चूंकि हमारा 1 घंटे का सेशन है तो हम समराइज रूप से कहेंगे। एक बात, ये बात सर्वज्ञ ने कही है, ये बात वीतरागी ने कही है। दूसरी बात, जिस लोक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो लोक बनाया किसने है, उसका निर्माण किसने किया है, उसकी रचना किसने की है। तो जैन दर्शन की अपनी एक मौलिक विशेषताओं के साथ के नहीं साहब ये आर्ग्यूमेंट हमारे यहां नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्वनिर्मित है, स्वनिर्मित अनादि निधन है। यहां पर जो रचनाएं हैं वे अकृत्रिम रचनाएं हैं पूरे ब्रह्मांड की। ये सृष्टि की रचना किसी से नहीं की है, क्योंकि यदि हम सृष्टि की रचनाकार का बात करना प्रारंभ करेंगे तो एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। और जैन शास्त्रों में उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। ये संभव ही नहीं है कि सृष्टि का कर्ता किसी को माना जाए। यही कारण है कभी कभी आम जनता के बीच में जैन दर्शन की अवधारणा को स्पष्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जैनी लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हैं। तो जवाब आता है भाई साहब इनके तो हजारों मंदिर हैं, लाखों मूर्तियां हैं, तो वो कौन है फिर। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देखो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान को कैसा मानते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने कषायों का अभाव कर दिया है, जो सर्वज्ञ हो गया है, सिंपल सरल लैंग्वेज में जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो गया है, वो हमारा भगवान है। कोई भी विकार अवशेष नहीं रहा है। आंशिक विकार भी यदि किसी व्यक्ति में हो, हम उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि विकार तो हमारे अंदर ही भरपूर भरे पड़े हैं। यदि विकार सहित आपको भगवान मानना पड़े तो हम खुद को ही भगवान मान लें, कोई समस्या नहीं है। विकार तो विकार हैं, समस्त संसारी भगवान सिद्ध होंगे फिर। इसलिए बहुत स्पष्ट अवधारणा है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब निर्माण नहीं किया कैसे हो सकता है, कैसे। तो इस मामले में कई बार विज्ञान हमें सपोर्ट भी करता है, विज्ञान हमारी सहायता भी करता है, और वो खुलेआम कह रहा है कि इस धरती पर जितने भी परमाणु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे निर्मित नहीं होते हैं, क्रिएटेड नहीं होते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये थ्योरी सबके सामने आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पदार्थ अनंत अनंत काल से यहाँ विद्यमान हैं। हाँ, हम और आपके निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से मैंने ये मोबाइल उठा के यहाँ रख दिया,
ये मोबाइल उठा के यहाँ रख दिया ऐसे निमित्त नैमित्तिक पने से, और मैं कहने लगा कि इस मोबाइल को मैंने बनाया है। तो कल अपनी चर्चा परसों हो चुकी है कि यहाँ कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, सब असेंबल करने वाले लोग हैं, और असेंबलिंग भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रही है। कुछ भी असेंबलिंग नहीं हो जाएगी। असेंबलिंग भी कब होगी? उनके द्रव्यों के, उनके अपने गुणों की क्वालिटी उसमें मिले तो असेंबलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तेल और पानी की असेंबलिंग नहीं हो सकती है। ले आओ किसी भी वैज्ञानिक को, बोलो तेल और पानी की असेंबलिंग कर दो, कि नहीं होगी। तेल के लक्षण अलग हैं, पानी के लक्षण अलग हैं। पुद्गल पुद्गल की असेंबलिंग होगी, क्योंकि उनका निमित्त नैमित्तिकपना आपस में मिल जाता है। चलिए, अब हम अपन आगे बढ़ते हैं किस रास्ते पर, जहां हम नजारा देखें पूरे विश्व का, क्या हाल चाल है, और कोशिश करते हैं आपको हम ये महसूस करा पाएं कि ये विश्व बड़ा विराट है, समझने जैसा है, जानने है। जैन कॉस्मोलॉजी के आलोक में अष्टानिका महापर्व, थोड़ी सी चर्चा हमने की है और थोड़ी अब हम करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तीन लोक की। तीन लोक माने जैन धर्म का ब्रह्मांड, जैन दर्शन का सब कुछ इसमें आ जाता है, कुछ रह नहीं जाता है। तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जनरली जब जब भी हम जैन दर्शन के ब्रह्मांड की, जैन दर्शन के विश्व की बात करते हैं, तो ये नक्शा आप लोगों ने जरूर जरूर देखा होगा। ये तीन लोक का नक्शा इसको बोला जाता है। और कई बार हमने इनको मंदिरों की दीवारों पर चित्रित देखा होगा। यहाँ तक कि भारत सरकार ने बीच में जो सिक्के निकाले थे, उस सिक्के पर भी ये तीन लोक का चित्र था। कई झंडों में पहले तीन लोक का चित्र आपने देखा होगा, और नीचे एक सूत्र लिखा रहता है, परस्परोपग्रह जीवा नाम। इस तरह से इस तीन लोक के चित्र से हम और आप परिचित हैं। कोशिश करते हैं इस तीन लोक के अंदर क्या है वह जानने की। तो हम दो तरह से कोशिश करते हैं। पहले एक रफ आइडिया आपको देते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो बहुत आगे की बात होती है। आज उपलब्ध विज्ञान जो है वो ब्रह्मांड के बारे में क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, उसके पास कितनी जानकारियां हैं, यदि हम उससे भी थोड़ा बहुत परिचय होते हैं तो हमारे ख्याल में आ जाएगा। और मैं आपको देखो ये बताता हूं, पूरे विश्व की बात करेंगे हम। विश्व किसे कहेंगे? एक चित्र है जिसको आप देखेंगे तो शायद आपको ख्याल में आएगा। ये जूम आउट किया गया चित्र है। हम 1 मीटर, 10 मीटर और 100 मीटर की दूरी से देखने की कोशिश करेंगे, न केवल 100 मीटर की दूरी से, बल्कि 1 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो नज़ारा ऐसा दिखेगा, और 10 किलोमीटर की दूरी से देखते हैं तो ऐसा है। 100 किलोमीटर से ये ऐसा दृश्य हो जाता है, 1000 किलोमीटर से इसकी रचना ऐसी दिखती है। 10,000 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो पूरा पृथ्वी हमको दिखने लग जाती है, ऐसा कहते हैं ये लोग। और 100,000 और 1 मिलियन किलोमीटर से देखेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म बिंदु जैसा हो जाता है। 10 मिलियन पे जाके तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 100 मिलियन हो गया ये किलोमीटर्स में। तो हमको दूसरे दूसरे जो मून हैं और जुपिटर हैं वो सब भी नज़र आने लग जाते हैं, और 10 बिलियन किलोमीटर से ये नज़ारा आपको दिखेगा। ये मैं जो दिखा रहा हूँ या आप जो देख रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान के नेत्र से नहीं देख रहे हैं। ये तो मनुष्यों ने जो उपलब्ध जानकारियों के आधार से जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है उससे देख रहे हैं। कि जब आप जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, दूरियां बढ़ाते जाएं इस धरती से, तो कहाँ जाके पहुंच जाएंगे और क्या स्थितियां होंगी। 1 मिलियन लाइट ईयर्स में अगर देखते हैं डिस्टेंस से तो क्या होगा, और 10 मिलियन जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे, उसके कोई लिमिट नहीं है। फिर भी कोशिश की है कि ये दूरियां हो सकती हैं। जब हम रिटर्न आते हैं वापस वहीं पर जहां थे वहां से, तो आपको ख्याल में आएगा कि उपलब्ध विज्ञान द्वारा बताया गया मध्य लोक भी इतना विस्तार लिए हुए है, जो कि मत्स्योद् ज्ञान का सामान्य सा विषय है, द्वादशांक का भी नहीं है ये। तो केवल ज्ञान का कितना गंभीर विषय होगा, और केवल ज्ञान की आंख से देखेंगे तो क्या स्थिति होगी। अभी हमने डिस्टेंस क्रिएट किया था, अब हम और उसको जूम करके देखते हैं कि और कितनी सूक्ष्मता है पदार्थों की, परमाणुओं की। जैसे एक आंख है,
1 मिलीमीटर से देखते हैं या 100 माइक्रोमीटर्स के, और उसको डिस्टेंस उसको करते हैं जूम। तो जैसे जैसे हम जूम करते हैं तो परमाणुओं की क्या स्थिति है। और कई लोग तो ये परिचित होंगे ही इस विषयों से, जो विज्ञान से थोड़े भी जुड़े हुए लोग हैं, और जो नहीं भी परिचित होंगे उतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ये दृश्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि हम जो बात कहने जाएंगे, आपको उस पर भरोसा करने के लिए शास्त्र और सर्वज्ञता का जो विश्वास है उसके साथ बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम बोलेंगे असंख्यात समय होते हैं 1 सेकंड में, जब हम बोलेंगे अनंत पदार्थ हैं इस धरती पर, जब हम जो भी कुछ भी बोलेंगे तो आप कहेंगे कैसे 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 कैसे, तो उसका एक रफ आइडिया आपने देखा कि हम मनुष्यों ने ही इतनी खोज कर ली है कि यदि हम नेत्र के अंदर प्रवेश करें, प्रवेश करते जाएं, प्रवेश करते जाएं, प्रवेश करते जाएं, तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत सूक्ष्मता लिए हुए है। आचार्य कह रहे हैं कि वो जो अभी अपने लास्ट सूक्ष्म बिंदु देखा है उसके अंदर, उसके अंदर वो अनंत परमाणुओं का समूह हो सकता है। मतलब उसके अनंत टुकड़े और संभावित हैं। उसके बाद वो जो एक टुकड़ा होगा उसमें अनंत गुण विद्यमान हैं। उन अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्यायें हैं। तो आप समझ लीजिएगा पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड की जो हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, हमारा ज्ञान बहुत अल्प पड़ जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है। बस हम अपने श्रद्धान और शास्त्र से कोशिश करते हैं तो हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। 3 लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, 3 लोक को जानने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो जैन शास्त्रों में जो 3 लोक का वर्णन है वो 6 द्रव्यों के द्वारा बताया गया है कि ये 3 लोक जो है 6 द्रव्यमयी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्यों की चर्चा आपने जरूर 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 कहीं ना कहीं सुनी होगी। अब ये जो 3 लोक है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसका नाम 3 लोक इसलिए है, ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है। इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, इसका आकार ऐसा क्यों है, इसका साइज ऐसा क्यों है, और इसमें जो बताया गया है रचना, उसका स्वरूप कैसा है। देखिए, आप फ्रंट से देखेंगे तो जो आपको दिख रहा था वैसा ही दिखेगा, लेकिन यदि आप थोड़ा 3 लोग को साइड से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो 7 राजू की है, हाइट जो है वो 14 राजू की है। मध्य लोक जो है, ये देखिए, ये इसका फ्रंट है, सबसे ऊपर सिद्धशिला है। फिर ये ऊर्ध्वलोक है जहां देवलोक कहा जाता है। फिर ये मध्यलोक है। मध्यलोक के बाद नीचे जो है, फिर जिसको हम नरक कहते हैं, वहां 7 पृथ्वियां हैं और उसके नीचे निगोद है। अब ये जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आप देख रहे हैं फ्रंट से, वास्तव में ये जो तीनों चीजें जो हैं, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ये सब कुछ बीचों बीच एक तृष्णाली है। एक राजू चौड़ी और एक राजू क्या कहना चाहिए, 1 बाई 1 की, ऐसे और ऐसे दोनों में एक है, और ऊंचाई है इसकी 14 राजू, ऊंचाई पूरी है। तो ये जो तृष्णाली है, इसका नाम तृष्णाली इसलिए है क्योंकि जितने भी त्रस जीव हैं, त्रस जीव अर्थात 2 इंद्री से ऊपर वाले जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इसमें सभी नारकी आ गए, सभी मनुष्य आ गए, सभी देव आ गए, और 2 इंद्री के बाद वाले सभी त्रियंच आ गए, 1 इंद्री छोड़ दिया है। 1 इंद्री जो जीव राशि है वो 3 लोक के चप्पे चप्पे पर है, वो कहीं भी है, और उसकी संख्या अनंतात्मक है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो तृष्णाली है वो सब 1 राजू चौड़ी, 1 राजू लंबी और 14 राजू ऊंची, ये तृष्णाली है। आपको जितनी भी चर्चाएं शास्त्रों में मिलती हैं, नरकों की, स्वर्गों की, 4 गतियों की, संसार अवस्था की, वो सारी की सारी चर्चाएं इसमें समाहित हैं 3 लोक में। इन 3 लोक में आप टोटल 8 पृथ्वियां हैं, 8 भूमियां हैं। सबसे ऊपर जो भूमि है उस पर सिद्धशिला है, ईसत प्रागभाव भूमि कहा जाता है, और 7 भूमियां नीचे हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा।
हम थोड़ा सा मुक्सुक या उसमें सुविधा के अनुसार बोल देते हैं नरक 7 होते हैं, नरक 7 होते हैं। वास्तविकता ये है कि नरक तो 84 लाख होते हैं, पृथ्वी 7 होती हैं, और एक एक पृथ्वी में अलग अलग नरकों की संख्या है। इसलिए वो डिटेल इसमें पूरी दी गई है। मैं अभी इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने को चर्चा अष्टानिका पर्व पे है, तो नंदीश्वर द्वीप की करनी है। लेकिन इसके बिना नंदीश्वर तक पहुंचेंगे कैसे? तो 3 लोक है, 3 लोक में से ये मध्य लोक है। मध्य लोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है, ये राउंड राउंड जो दिख रहे हैं ना आपको। जम्बू द्वीप के बाद फिर लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप है, धातकी खंड द्वीप के बाद धातकी समुद्र है। तो ये जो कालोदरी समुद्र है, तो ये जो द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, जैनाचार्य कहते हैं मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इट मीन्स हम गिन नहीं सकते हैं, इतने द्वीप और इतने समुद्र हैं। और इनका जो विस्तार है वो कैसा है? डबल डबल योजन वाला है। जैसे जम्बू द्वीप सबसे बीच में है, अगर हम मध्य लोक की बात कर रहे हैं। देखो आपको मैं आपको कहाँ था, एक सेकंड बताता हूं। अभी हमने 3 लोक को देखा, अब हम 3 लोक को ना देखते हुए सिर्फ जम्बू द्वीप को देखें, या जम्बू द्वीप में अपन ये देखते हैं, शायद ये कहाँ का है। हाँ, ये जम्बू द्वीप का मानचित्र है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। जो मैं बोलूँ और जैसा मैं बोलूँ आपको ना दिखे तो आप मुझे याद दिला देना, कई बार स्क्रीन कभी कम ज्यादा हो जाती है। तो ये जम्बू द्वीप है आपका। अभी हम जो हैं, ये देखिए सेंटर में ये जम्बू द्वीप है, ये सुमेर पर्वत है। इसमें आपको सब दिख रहा होगा, सब माने विदेश क्षेत्र भी दिख रहा होगा, भरत क्षेत्र भी दिख रहा होगा, एरावत क्षेत्र भी दिख रहा होगा, अपना भरत क्षेत्र भी दिख रहा होगा। तो हम अगर प्रश्न करें कि हम लोग कहाँ हैं, तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि हम अभी जम्बू द्वीप के, ये आ गया सबसे नीचे जो है, ये भरत क्षेत्र आ गया, ये भरत क्षेत्र आ गया। और भरत क्षेत्र में 1 2 3 4 5 म्लेच्छ खंड हैं, और एक आर्यखंड है। और ये आर्यखंड जो है ये भरत क्षेत्र है। अभी पूरी धरती, पूरी दुनिया हम जिससे परिचित हैं, जहां हम एक दूसरे क्षेत्र से आवागमन कर रहे हैं, वो सब कुछ आर्यखंड का छोटा सा हिस्सा है। अब हम वर्तमान पृथ्वी को या वर्तमान भूगोल के नक्शों को देख करके कुछ निर्णय इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 20 100 50 200 साल में इतने बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने 150 साल पुराना भारत का नक्शा देखा, तो पता है उसमें क्या था? उसमें पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, और पहले गया तो अफगानिस्तान भी भारत में था, तजाकिस्तान भी भारत में था। तो भारत एक अलग तरह का नक्शा था। और आज हम अगर गूगल पे या कहीं भी पूछेंगे भारत कैसा है, तो उसका नक्शा अलग दिखाया जाएगा। हो सकता है आने वाले 50 साल में या 100 साल में भारत का नक्शा कुछ और हो। तो उपलब्ध जो हमारे पास मानचित्र हैं वो, और शास्त्रों में जो वर्णित है वो, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें उलझन में ना पड़े कि हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, हमको वैसा नहीं दिख रहा है। भैया तुम्हें बहुत छोटा सा दिख रहा है। हम इतिहास से अनभिज्ञ लोग हैं। 2000 साल पहले शास्त्रों की रचनाएं हुई हैं, और 2000 साल बाद हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जो आध्यात्मिक विषय है वो तो युक्तियों से तुरंत समझ में आ जाता है कि जीव कषायों का अभाव करके, शुद्धात्मा की प्रतीति करके अपनी आराधना कर सकता है, निर्मल रह सकता है, और निशंक होकर मोक्ष मार्ग में चल सकता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आप आर्गुमेंट में उलझ जाएंगे तो फिर कषाय होने लग जाएगी, फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूं, हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है बहस करने के लिए, लेकिन इतना पूरा भरोसा है कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जिस सूक्ष्मता और जिस विस्तार से वर्णन किया है, उसमें संशय की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो ये हम देख रहे थे अभी जम्बू द्वीप, बराबर है, ये एक द्वीप है। इसके बाद हर द्वीप को समुद्र ने घेर रखा है। इसके बाद समुद्र है, इसके बाद फिर एक द्वीप है, फिर उस समुद्र को घेर रखा है, उसके बाद फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र को घेर रखा है। सुविधा के लिए आपको मैं इससे बड़ा, अभी सिर्फ जम्बू द्वीप देख रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे 2.5 द्वीप देखें।
ये देखो, शायद थोड़ा सा आपको, ये सेंटर में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसे हम लवण समुद्र कह रहे हैं। लवण समुद्र के बाद फिर एक द्वीप है जिसका नाम धातकी खंड द्वीप है, बराबर है। धातकी खंड द्वीप के बाद हम देख रहे हैं एक समुद्र है, कालोदधी समुद्र। आप ये समझ लीजिएगा, हर द्वीप को बड़े बड़े समुद्रों ने घेर रखा है। और पृथ्वी रचना ऐसी ही होती है वर्तमान में भी, जहां जहां भी टापू हैं या द्वीप हैं, वो सब पानी से घेरे हुए हैं। तो ये पूरे जम्बूद्वीप की बात चली। फिर लवण समुद्र आया, फिर धातकी खंड आया, फिर कालोदधी समुद्र आया, फिर आपको अगला द्वीप आ गया, फिर अगला समुद्र आ जाएगा, फिर अगला द्वीप आ जाएगा, फिर अगला समुद्र आ जाएगा, फिर अगला द्वीप आ जाएगा, अगला समुद्र आ जाएगा। बोले ऐसा कब तक चलता रहेगा? बोले असंख्यात चलता रहेगा। सबसे अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। सबसे अंतिम जो समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। और वो स्वयंभू रमण समुद्र बहुत विस्तार लिए हुए है। अब इनकी जो विस्तार पद्धति है वो क्या है? जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप कैसा है? 1 लाख योजन का। जब हम 1 लाख योजन बोलते हैं, अब वो बात ऐसी है कि हम किलोमीटर से परिचित हैं, माइल से परिचित हैं। ये जैन दर्शन के शब्द हैं। और ये अन्य दर्शनों में भी ये शब्द पाए जाते हैं। वैदिक दर्शनों में भी ये योजन और ये सब शब्द पाए जाते हैं। बुद्ध आदि अन्य मतों में भी ये शब्द पाए जाते हैं। और योजन का परिमाण जो शास्त्रों में बताया गया है कि 2 तरह का योजन होता है, एक प्रमाण योजन, एक व्यवहार योजन। तो जब हम कृत्रिम रचनाएं के डिस्कशन करते हैं, या हमने खुद ने जो निर्माण किया उसकी रचना बात करते हैं, तो वो योजन अलग होता है। और नेचुरल जो है, 3 लोक की जो ये अभी रचना अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकृत्रिम रचना है। इसकी रचना का प्रमाण योजन बड़ा है। माने ऐसा समझ लीजिएगा कि एक योजन में 2000 कोश होते हैं, 2000 कोश। और एक कोश लगभग लगभग 1.5 माइल का होता है। मतलब अगर हम कैलकुलेशन करें, आई थिंक में माइल का कुछ भी हो, तो 2000 कोस का मतलब हो गया कम से कम 6000 किलोमीटर। मोटा मोटी बता रहा हूं, एक्यूरेट आप निकाल लेना, मिल जाएगा आपको। तो अब 2000 कोस का एक योजन, और 1 लाख योजन का पूरा जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप यदि 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र जो है वो कितने लाख योजन का है? केवल वो 2 लाख योजन का है। और लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप जो है वो कितना है? कि वो 4 लाख योजन का है। और उस योजन के बाद जो उस द्वीप के बाद जो समुद्र है वो कितना है? वो 8 लाख योजन का है। उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद, तो ये जो क्रम है, दुगना 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 आप करते जाएंगे तो आप असंख्यात द्वीप समुद्रों के परिमाण तक पहुंच पाएंगे। आज अपन इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। आज अपन चलते हैं सीधे नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? कैसा? नंदीश्वर द्वीप जो है 8वें नंबर का द्वीप है, ये आपको पता है, बराबर। पूजन जो हम पढ़ते हैं उसके जयमाला में इसका वर्णन किया गया है। हम वहां से भी इसको रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरी समरी ख्याल में आ जाएगी। और भी हम एक चित्रात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो 8वें नंबर द्वीप तक पहुंच जाएं। तो 8वें नंबर द्वीप तक पहुंचने के लिए हमको कितने द्वीप समुद्र पार करने पड़ेंगे? कुछ आइडिया है आपको? 7 तो द्वीप पार करने पड़ेंगे, तब तो 8वां द्वीप आएगा। और 7 द्वीप पार करने पड़ेंगे तो 7 समुद्र भी पार करने पड़ेंगे, क्योंकि हर द्वीप के बाद समुद्र हैं। तो हम कुल मिला के ये 15वें नंबर पर हमारी गाड़ी पहुंचेगी अगर द्वीप समुद्र की टोटल काउंटिंग की जाएगी तो। और द्वीप कहलाएगा हमारा 8वां। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब हम योजनों को डबल डबल करते जाएंगे तो हम नंदीश्वर द्वीप के जो परिमाण योजन निकालेंगे वो 163 करोड़ 84 लाख योजन का है। कौन सा? नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा है? 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो 163 करोड़ 84 लाख योजन जो है, ये कौन सी मोटाई है? तो देखो मैं आपको, कहाँ है ढाई द्वीप? आई थिंक हाँ ये है। ये देखो, इसमें नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे हमने
जम्बूद्वीप को नापा, तो जम्बूद्वीप को कहां से कहां तक नापा, यहां से यहां तक नापा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सेंटर अपन ने नापा, ये 1 लाख योजन का है। फिर हमने लवण समुद्र को नापा, तो लवण समुद्र को ये इसकी जो मोटाई है, आप कहीं से भी नापेंगे लवण समुद्र की मोटाई, तो वो आपको 2 लाख योजन की मिलेगी, कहीं से भी आप रखेंगे तो उसकी मोटाई, परिधि की बात नहीं चल रही है, मोटाई की बात चल रही है। फिर अपन धात की खंड द्वीप में जाएंगे तो उसकी ये मोटाई है, तो ये 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो जाएगा। फिर हम कालो नदी समुद्र में आएंगे तो ये 8 लाख योजन हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब हम नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाएंगे तो 163 करोड़ 84 लाख योजन की रचना है वो। वहां क्या स्थिति है कि वहां स्थिति ये है कि हम सेंटर में बैठे हैं जम्बूद्वीप में, यहां से बात करें तो 4 दिशाएं अपनी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोने के हिसाब से 8 हो जाती हैं, और दो और अधो जोड़ेंगे तो 10 दिशाओं की बात अपन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन 4 दिशाओं की बात करते हैं। चारों दिशाओं में वहां पर अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। अब इससे कई रास्ते खुल जाते हैं, एक तो उन लोगों के भी रास्ते खुल जाते हैं जो लोग दिशाओं को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा अच्छी है। तो जैन शास्त्रों के अनुसार नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में जिनालय है। अब चारों दिशाओं में जिनालय हैं तो फिर अब आप अच्छी दिशा और बुरी दिशा का गड़बड़ ना करना। और जो श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन चैत्य वंदन करते होंगे या जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो त्रैकालिक वंदना करते हैं, तो चारों दिशाओं के सभी जिनालयों को नतमस्तक करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये अलग बात है कि हम मुख्य रूप से पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को बहुत प्रमोट करते हैं। उत्तर दिशा में हमारे सिमंदर परमात्मा विराजमान हैं सीधे सीधे, और पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और सूर्य में भी अकृत्रिम जिनालय है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि रोज ही अकृत्रिम जिनालय के दर्शन हो रहे हैं। तो पूर्व दिशा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है निस्संदेह, लेकिन आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई भी दिशा आपको गला दबा के आपकी जान नहीं लेगी, उसके लिए फिर कर्म सिद्धांत बैठा हुआ है। मतलब कई बार ऐसा होता है सैद्धांतिक रूप से कई चीजें शास्त्रों में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग भय के लिए किया जा रहा हो तो वो ठीक नहीं है, निर्भय करने के लिए किया जा रहा हो तो ठीक है। मतलब कोई भी धर्मगुरु अगर ये शब्द प्रयोग करे कि संकट आ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, नहीं, बोले तीर्थंकरों के मार्ग में तो ये कहते हैं कल्याण हो जाएगा, धर्म वृद्धि रस्तु हो जाएगा, यहाँ बर्बाद नहीं होते हैं, यहाँ संकट नहीं आता है, यहाँ तो सर्व संकटों से अनंत काल के लिए मुक्ति का मार्ग खोला जाता है। चलिए अपन वापस आ जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में जैसे ही हम नंदीश्वर द्वीप पहुंचेंगे, आप किसी एक दिशा का अगर सही सही समझ लेंगे तो चारों दिशाओं का समझ में आ जाएगा। किसी भी एक डायरेक्शन में आप गए, जैसे समझे पूर्व दिशा में गए, तो पूर्व दिशा में जो उसकी मोटाई है वो कितनी है, 163 करोड़ 84 लाख योजन। उसके बीचों बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अंजनगिरी पर्वत। वो अंजनगिरी नाम ही इसलिए है कि अंजन माने काजल, अंजन माने ब्लैक कलर का जो होता है, तो वो काले रंग का श्याम वर्ण का पर्वत है, इसलिए उसका नाम अंजनगिरी पर्वत है। और वो 84,000 योजन ऊंचा है, 84,000 योजन मोटा है, और 1,000 योजन की उसकी नींव है। ये देखो, जैन दर्शन से भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट समझना चाहे कि बड़े बड़े निर्माण कैसे होते हैं, तो मेरे को पढ़ के आश्चर्य हुआ कि उसमें नींव की चर्चा भी की है, और उसमें ऊंचाई की भी चर्चा की है, चौड़ाई की चर्चा की है, और एक्यूरेट माप के साथ में की है। तो वो बहुत विशाल पर्वत है, एक पर्वत अंजनगिरी। और एक जो अंजनगिरी पर्वत है उसके चारों तरफ क्या है, 4 वापियां हैं। वापियों को बावड़ी समझ सकते हैं, बावड़ियां आप समझते हो तो बड़े बड़े लेक समझ लो जो समुद्रों जैसे लगे हैं आपको, तो जब योजनों की बात चल रही है ना, उनके लिए वो वापियां हैं, बावड़ियां हैं। अपने लिए तो वो समुद्रों से भी बड़ी हो गई, वैसे अपने समुद्र इतने बड़े नहीं है जितने बड़े तो वापियां। तो नाम वापी है लेकिन विस्तार बहुत है, तो 4 वापियां हैं। और उन 4 वापियों के पास हम जाएंगे तो वहां पर आपको फिर और पर्वत मिलेंगे, दधिमुख मिलेंगे, फिर और आगे जाएंगे तो रतिकर मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़े चित्र के पास ले सकता हूं तो आपको उसका थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ये कहाँ है, इतने सारे ये देखो,
टेक्स्ट इसके थोड़े से क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे सेंटर में जम्बूद्वीप है, बराबर है। फिर लवण समुद्र है, फिर धात्कीखंड द्वीप है, फिर कालोदरी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर समुद्र है, फिर वारुणी द्वीप है, वारुणीवर समुद्र है, फिर क्षीरवर द्वीप है, क्षीरवर समुद्र है, फिर धृतवर द्वीप है, धृतवर समुद्र है, फिर इक्षुवर द्वीप है, इक्षुवर समुद्र है, और उसके बाद नंबर आता है नंदीश्वर द्वीप का। और नंदीश्वर द्वीप माने ये जो मोटाई है वो उसकी 163 करोड़ 84 लाख योजन की है। वहां पर क्या स्थिति है ये देखिए, ये जो मैं मोटाई की बात कर रहा था वो ये मोटाई इतनी सी ये है। अब इसके बीचों बीच में सेंटर में एक अंजनगिरी पर्वत है, बराबर है। अंजनगिरी पर्वत बीच में होने के बाद जो चार बाबड़ियां हैं वहां पर उनके चारों दिशाओं में चारों तरफ दधिमुख हैं। ये दधिमुख दिखा आपको, फिर यहां दधिमुख है, फिर यहां दधिमुख है, फिर वहां दधिमुख है। और इन चारों दिशाओं में जो दधिमुख पर्वत है बाहर की ओर, हर दधिमुख पर्वत के पास फिर उधर एक दो दो रतिकर हैं। तो अगर एक तरफ का मामला हम समझें तो ये अंजनगिरी पर्वत है एक, उसके चारों तरफ चार दधमुख पर्वत हैं, एक दो तीन चार, और चारों दधिमुख पर्वत के आगे दो दो रतिकर हैं, तो वो हो गए 8। अगर कोई काउंटिंग करना जाने तो बता सकता है टोटल कितने हो गए। 8 रतिकर हो गए, 4 दधिमुख हो गए, और एक अंजनगिरी, तो ये हो गए टोटल 13। और एक एक पर्वत पर एक एक जिनालय है, और एक एक जिनालय में बहुत ही रत्नमयी, और क्या कहना चाहिए उसकी विस्तारित चर्चा तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। ऐसी सुंदर प्रतिमाएं आपने धरती पर कहाँ देखी हों, या कृत्रिम रचनाओं के साथ में प्रतिमाएं हैं। ऐसी प्रतिमाएं हैं कि दर्शन करे तो सम्यक दर्शन हो जाए जीव को, क्योंकि सटीक मुद्रा हो तो प्रतीति होती है कि ऐसा ही स्वरूप मेरा है। एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं, और जब एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं तो चारों दिशाओं में टोटल जिनालय कितने हो जाएंगे? 52 जिनालय चारों दिशाओं में हो जाएंगे। तो ये जो नंदीश्वर द्वीप की रचना है, 8वें नंबर का द्वीप है, 8वें नंबर द्वीप में 52 जिनालय हैं, और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, और वे प्रतिमाएं बड़ी ही भद्र हैं, निर्मल हैं। उनकी क्या कहें, कृत्रिम रूप से ही ऐसा लगता है मानो साक्षात परमात्मा विराजमान है। वचन बोलत मनो, ऐसा लगता है कि बोल रही हैं ये। लाल मुख नयन श्याम श्वेत हैं, एक एक वर्णन किया ना पूजा में, वो उन पंक्तियों से आपको लगेगा कि हम साक्षात तीर्थंकरों के समोसरण में पहुंच गए हैं। देखो मैं आपको वो भी मैंने ओपन करके रखा था समरी के लिए, जो हम पूजन करते हैं। मैं सिर्फ पहली और अंतिम पंक्तियां पढ़ूंगा। एक तो हम ये पढ़ते हैं शुरुआत में, सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि ले बसुधरब है, हमें सकत सो नाही यहाँ कर थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। तो सब पर्वों में ये बहुत बड़ा पर्व है। बड़ा इसलिए है कि 3 लोग इन्वॉल्व हो रहा है, देवतागण शामिल हो गए इसमें, और नंदीश्वर जाते हैं, सारे देवता लोग नंदीश्वर जाते हैं। हमें सकत सो नाही, हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ कर स्थापना, हम यहीं पर स्थापना करके पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। हम जिन ग्रह की प्रतिमा को पूजते हैं, इससे क्या होगा? अपना नुकसान होगा कि फायदा होगा? अपना फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वंदे तदगुण लब्धये। देखो, कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माय, नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे ये ठाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी के महीनों के नाम लिए हैं, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के,
जो अंतिम 8 दिन होते हैं, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, इन दिनों में अष्टानी का पर्व मनाया जाता है। अष्ट अनिका, अनिका माने दिन, अष्ट माने 8, और नंदीश्वर वहां जाते हैं, हम पूजते हैं। अब वहां का दृश्य जो है वो मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूं और आपको समरी समझ में आ जाएगी। 163 कोटि जोजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा। 163 करोड़ योजन और लाख 84, दोनों को मिला दो। 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में है। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भवन प्रतिमा नमो, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। और 8वां दीप है नंदीश्वर, 52 भवन बने हुए हैं, जिनालय बने हुए हैं, उनमें जो प्रतिमाएं हैं वे सुखकर हैं। 4 दिश 4 अंजन गिरी राज ही, सहस 84 एक दिश छाज ही। 84,000 योजन जो है उनकी। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, कि वो पर्वत कैसा दिखता है, जैसे बड़े बड़े ढोल होते हैं ना, बीच में थोड़े मोटे होते हैं, ऊपर कम होते हैं, नीचे कम होते हैं, ऐसे सुंदर दिखते हैं। भवन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, एक एक 4 दिश 4 शुभ बावरी, चारों एक एक दिशा में 4 4 बावड़ियां हैं। 1 1 लाख योजन अमल जल भरी, निर्मल जल भरा हुआ, गंदगी रहित। अपने यहाँ जैसी नदियां नहीं है कि कोई भी जाके उसमें कुछ भी फेंक के आ जावे। 1 1 लाख योजन अमल जल भरी, चहु दिश 4 वन, लाख जोजन वरम, बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। 16 वापीन मधि 16 गिरी दधि मुखम, 16 वापियां हैं तो 16 उसमें दधिगुर मुख पर्वत हैं। सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, और जो वापियों के 2 कोने हैं आगे के, उन दोनों कोने पर रतिकर नाम के पर्वत हैं। शैल 32 एक सहस जोजन कहे, और शैल 32, शैल माने पर्वत, तो 32 रतिकर पर्वत हो गए जो 1000 योजन के कहे गए हैं। 416 मिले सर्व 52 लहे, 16 और 4 और 1 को मिला देंगे तो सब कितने हो जाएंगे, 52। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, एक एक शीश पर एक एक जिन मंदिर है। बिंब 8 100 रत्नमयी सोही, एक एक मंदिर के ऊपर 108 जिन बिंब हैं रत्नों के। देव देवी सरब नयन मन मोही, 500 धनुष तन पद्म आसन परम, 500 धनुष की काया है उनकी, 500 धनुष। अब धनुष माने क्या कहें उसको, 4 हाथ का एक धनुष होता है। हाथ समझते हो, ये यहाँ से कौनी से लेकर के अग्रभाग बीच की उंगली तक जो हिस्सा है वो एक हाथ है। मतलब लगभग लगभग हम बात करें अभी वर्तमान से भी गणित लगाएंगे तो 1.5 फीट का एक हाथ होता है, तो 4 हाथ का मतलब हो गया 6 फीट का, तो 6 फीट का एक धनुष। और ये प्रतिमा कितनी ऊंची है, 500 धनुष ऊंची प्रतिमा है। कैसी लगती है मालूम, वो लाल नख, नख ऐसे लग रहे हैं जैसे लाल लाल हो रहे हैं। मुख नयन श्याम और श्वेत हैं, नाखून और होठ, मुख उनके एकदम लालिमा लिए हुए हैं, आंखें काली और सफेद लिए हुए हैं, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देते हैं, और बालों के रंग जो हैं, वयन बोलत मनो हसत कालुष हरम, ऐसा लगते हैं वाणी बोल रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिर रही है ऐसा लगते हैं, और समस्त कलुषता हर जाती है। देखो ये अकृत्रिम है, भगवान के मुख पर किसी ने वहां कुछ जाके लगाया नहीं है, नाखून बनाए नहीं है, ये अकृत्रिम रचनाएं हैं। और ये वर्णन इसलिए है क्योंकि जब साक्षात तीर्थंकर का जो रूप होता है जिसको हम भक्तांबर में पढ़ते हैं, बड़ा ही वीतरागी रूप होता है। उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं, कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा मिलकर के भी उतना प्रकाश और वैभव नहीं कर सकते हैं। महावैराग्य परिणाम ठहरात है, महावैराग्य का परिणाम ठहर जाता है। आप ज्ञान में कल्पना करके देखो कि मैं नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया हूं
और इतने विशाल विशाल पर्वतों पर बने हुए विशाल जिनालय के अंदर गया, और 500 धनुष ऊंची पद्मासन प्रतिमाएं बैठी हुई हैं, 108 महावैराग्य परिणाम ठहरात है, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। यद्यपि वो बोलते नहीं है, प्रतिमाएं हैं, आकृतिम है, बोलते नहीं है, तथापि सम्यक दर्शन होता है। भवन वावन प्रतिमा नमो सुकरम। ऐसे नंदीश्वर जिनालय में विराजमान सभी प्रतिमाओं को हम धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, भावना भाते हैं कि तीर्थंकरों को, भगवंतों को जो गुण प्रकट हुए हैं वे गुण मुझे भी प्रकट हो जाएं। ओम नमः सिद्धे। जय जिनेन्द्र विपिन जी, बहुत ही अच्छे से नंदीश्वर जी की रचना हम सबने जानी आज। डेफिनेटली लोगों को कुछ ना कुछ प्रश्न तो जरूर होंगे, तो आप लोग हैंड रेज करिए या फिर चैट में अपना प्रश्न लिख के दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पे पंडित जी उसका जवाब दे सके। यहाँ पे YouTube पे तो कोई सवाल अभी आया नहीं है। ओ, वीना जी को एक है। वीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो नदियां और पर्वत यहाँ जम्बू द्वीप में है, वो की वही नदियां और जम्बू द्वीप वो पहाड़ पर्वत नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं क्या? नहीं, जम्बू द्वीप की नदियां सारी की सारी लवण समुद्र में मिल जाती हैं, वहां की कहानी वहां खत्म हो जाती है। मतलब जम्बू द्वीप में जितनी भी अपन नदियां बह रही हैं वो बहते 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 वो लवण समुद्र तक पहुंच जाती हैं, और उसके बाद फिर द्वीप आ जाता है। तो द्वीप नहीं, माने, तो वो आपने जो एक वो दिखाया था अभी चित्र, उसमें ये दिखाया था कि सेकंड वाले द्वीप तक जा रही है, वो उसमें पिक्चर में दिख रही थी, हिमवान पर्वत और ये सब दिख रहे थे। नहीं नहीं, वो आप सिर्फ जम्बू द्वीप का देख रहे थे। जम्बू द्वीप के अंदर जो 6 क्षेत्र हैं, जम्बू 7 द्वीप क्षेत्र। 7 क्षेत्र हैं, तो वो जो एक के बाद एक क्षेत्र हैं, और वहां जो नदियां बह रही हैं, हम्म वो नदियां भरत क्षेत्र की नदियां, जैसे सीता गंगा जो बह रही है, वो बहती हुई ऐसे लेफ्ट राइट मुड़ गई और लवण समुद्र में मिल गई। फिर ऐरावत क्षेत्र की नदियां, फिर हिमबन क्षेत्र की नदियां, फिर अपने क्षेत्रों की नदियां बहते बहते लेफ्ट राइट ऐसे लवण समुद्र में मिलती जाती हैं। जी, धन्यवाद। फिर यहाँ पे एक प्रश्न आया है चैट में, कौन से देव वहां अभिषेक करते हैं? क्या सभी देव करते हैं? संदीप जैन जी का प्रश्न है ये। बड़ा जटिल ऐसे प्रश्न हैं, तकनीकी प्रश्न हो जाते हैं ये। शास्त्रों में उपलब्ध वर्णन के अनुसार तो पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करते हैं। अब पूजन करते हैं तो वो अभिषेक करते हैं कि नहीं करते हैं, और अभिषेक में फिर कौन सा अभिषेक करते हैं, और क्या क्या तरीके से अभिषेक करते हैं, ऐसा कोई वर्णन मुझे तो पढ़ने में उपलब्ध नहीं हुआ है अभिषेक का। देवगण जाते हैं, पूजन करते हैं। समो शरण में भी जब देवगण जाते हैं तो कोई अभिषेक नहीं करते हैं तीर्थंकरों का। अभिषेक प्रक्षाल की परंपरा भरत क्षेत्र की कर्म भूमि की मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारे परिणाम उसके अनुसार अवलंबन स्वरूप होते हैं, और स्वच्छता का उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये अकृत्रिम रचनाएं होती हैं। इनके जब मैं वर्णन पढ़ता था, कितने अकृत्रिम रचनाएं तो ऐसी हैं, जैसे ये नदियां जो बह रही हैं, नदियों में द्रह होते हैं, कुंड होते हैं, और कुंड का जो पानी गिरता है वहां कृत्रिम जिनालय बने हुए हैं और प्रतिमाओं के ऊपर पानी गिर रहा है। कोई कोई क्षेत्र से ऐसे हैं कि त्रिकाल अभिषेक हो रहा है भगवान का। तो ये व्यवहारिक रूप से जो हम जिस तरह से अभिषेक की परिकल्पना करते हैं, देवगण की वहां उस तरह के अभिषेक की परिकल्पना नहीं है कि वो छन्ने ले जाते हों, प्रतिमा पहुंचते हों, रखते हों, क्योंकि वो अकृत्रिम रचनाएं हैं। और अकृत्रिम रचना की पूजा भक्ति आराधना उपासना जिस तरह से की जाती है उस तरह से वे करते हैं। और कोई विशेष आपके पास होगा तो जरूर हम उसको शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, इज देयर एनी ह्यूमन बीइंग लिव ऑन? वहां पे कोई मनुष्य रहते हैं क्या? संजय शाह जी का प्रश्न है। नहीं, सॉरी, मैं कहना चाहूँगा आपसे, मनुष्य वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों की बहुत क्षमताएं कम हैं, और मनुष्यों के लिए आप एक शब्द याद रखिए, ढाई दीप। वो उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। मतलब पहला द्वीप अपना जम्बी द्वीप है, वहाँ मनुष्य जा सकते हैं। फिर उसके बाद धातकी खंड है,
और उसके बाद पुष्कर वर है। पुष्कर वर में भी क्या है, सेंटर में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम ही है मानसोत्तर पर्वत। मानसोत्तर पर्वत इसलिए नाम उसका पड़ गया है कि इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। मतलब कोई देवता भी आपसे दोस्ती कर ले वे, जैसे कुंदकुंद आचार्य को विदेश क्षेत्र ले गए थे, ऐसे आपसे कोई देवता भी दोस्ती कर ले और कहे चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं, तो वो आपको ऐसे थैले की तरह टांग के ले जाए भले ही, लेकिन जैसे ही मानसोत्तर पर्वत पहुंचेगा तो वहां से फिर वो ड्रॉप करना पड़ेगा, बोले आप यहीं जा सकते हैं। मानसोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य नहीं पाए जाते। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों की चर्चा शास्त्रों में आती है। अगला प्रश्न है, क्या हर एक पल पूजा होती रहती है? इसका वर्णन थोड़ा सा मिलता है, वहां भी देवों के भी बहुत सारे विभाग हैं, तो वहां भी पहले दोपहर में कल्पवासी, फिर भवनवासी, इस तरह से देवों के टाइम उसमें पुराण में तो वर्णन है, सिद्धांत ग्रंथों में नहीं देखा मैंने, लेकिन पुराणों में ये वर्णन थोड़ा सा है कि पहले दोपहर में कल्पवासी और भवनवासी करते हैं, फिर उसके बाद वैमानिक करते हैं। ऐसे अलग अलग जाति के जो देव होते हैं उनके लिए बनी है, जैसे अपन लोग व्यवस्था नहीं बना लेते हैं यूएस में कि पहले पहले आप कर लो फिर हम कर लेंगे, तो इस तरह से देवताओं में है। लेकिन ये बड़ी औपचारिक और उस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं देवता लोग अकृत्रिम रचनाओं के नजदीक जा रहे हैं, और जिसका विस्तार आप सबने देख लिया है, कितना विस्तार है, ठीक है, योजनाओं की बात चल रही है। और देवताओं के पास जो शरीर है वो भी आपको पता है औदारिक शरीर नहीं है, वैक्रियक शरीर है। तो वैक्रियक शरीर होने के कारण से उनको वो सब समस्या तो होती नहीं मनुष्यों जैसी, कि भूख लग रही है, कि प्यास लग रही है, बहुत देर हो गई, अभी 1.5 घंटे पूजा, और कितनी पूजा चलेगी, भोजन कम मिलेगा। दूसरी समस्या नहीं है शारीरिक विकृतियों की, और शरीर का आकार उनका विक्रिया से छोटा बड़ा हो सकता है, तो उनकी वंदना, उनके तीर्थ यात्राएं बड़ी ही सहज, सुगम और सुलभ होती हैं। मनुष्यों की तरह दंड फंद वाली नहीं होती हैं, या आकुलता वाली नहीं होती है। जैसे हम तो तीर्थ वंदना करने जाते हैं घर से सोच के मन प्रसन्न करने, कभी कभी कोई ऐसे पड़ोसी भक्त मिल जाता है उसके निमित्त से आपको राग द्वेष हो सकते हैं, वो ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं बैठा है, जो भी है। देवताओं के साथ छुटपुट समस्याएं मनुष्यों जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। हमारी सीमाएं, हम जो भी सोचते हैं अपने आसपास घट रही घटनाओं के आधार से सोचते हैं, लेकिन बात चल रही है देवताओं की और जैन दर्शन की। हमने भले ही कितने मतपन संप्रदाय खड़े कर लिए हों, परमार्थ से जिस दिन आपको केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको जन शासन एक रूप नजर आएगा। जो सिद्ध अवस्था के बारे में चर्चा की जाती है ना, शुद्ध परिशुद्ध अवस्था है, तो सारे विश्व में जहां जहां भी ब्रह्मांड में रचनाएं हैं, मध्यलोक में, उर्दलोक में, अधोलोक में, आपने देखा होगा ना, तो अधोलोक में भी पहली पृथ्वी थी, उसके 3 भाग थे, खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। तो सब जगह जो अकृतन चैत्यालयों की रचनाएं हैं, वे रचनाएं अनादि से हैं, अनंत काल तक हैं। और नंदीश्वर द्वीप की चर्चा विशेष, वहां की रचना कुछ विशेष है, तो उसकी विशेष चर्चा अपन ने आज थोड़ी सी की है। किसी का यहाँ पे, बोलिए। ये चिराग शाह का जो प्रश्न है, मैं पूरी चर्चा शुरू करने से पहले ये कहना चाहता था कि आज पूरे चैप्टर में ये मत पूछना है ऐसा क्यों है क्योंकि जैसे ही हमसे आप ये पूछोगे ऐसा क्यों है, तो हम कहेंगे चलो समोसरण तीर्थंकरों से पूछते हैं, और तीर्थंकरों से भी पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो बताओ वो क्या कहेंगे। जैसे मैं छत पे खड़े होके मैंने देखा 3 नदी बह रही हैं, अब मैंने बोल दिया भैया मुझे 3 नदियां दिख रही हैं। अब आप बोले भैया आपको 3 नदियां क्यों दिख रही हैं, अब हम क्या बता दें 3 नदियां क्यों दिख रही हैं भैया, बोलो क्या जवाब दें हम इसका। तो केवल ज्ञान में जो विषय आया, शास्त्र में वो विषय लिखा, और शास्त्र में ये लिखा कि नंदीश्वर में जिनालय की इस तरह की रचना है, माने है। अब वो रचना वहां क्यों है, ये प्रश्न शायद पूछने जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात ही मैप की चल रही है। अब मैं आपको अमेरिका का मैप समझा रहा हूँ, समझाते हैं यहाँ शिकागो है या न्यूजर्सी है, बोले यहाँ शिकागो क्यों है, अरे बोले ऐसे ऐसे नहीं, शिकागो क्यों है ये मत पूछो, शिकागो कैसे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये पूछ सकते हो, रास्ता है नहीं है, रोड जाएंगे कि फ्लाई करके जाएंगे कि ट्रेन जाएंगे, वो बात हो सकती है। तो नंदीश्वर कहाँ है, नंदीश्वर कैसा है, ये प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं। वहां क्यों है, तो ये तो आप हर वाक्य पे आप लगा दोगे। फिर बावनी जिनालय क्यों है, फिर 108 प्रतिमाएं क्यों हैं, फिर उनकी हाइट 500 धनुष क्यों है, 600 क्यों नहीं है, तो वो तो हम जो बोलेंगे आप उस पर ऐसे तो हजारों प्रश्न बन जाएंगे, और शायद हमारे चर्चा लंबी चल जाएगी, और हमारे पास समय सीमित है एक और प्रश्न ये है कि जैसे कि वहां पे हर समय पूजा होती है, ऐसे ही क्या मनुष्य भी हर समय पूजा कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट?
मतलब चाहे दिन हो या चाहे रात हो। बहुत बढ़िया। देखो, मनुष्यों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो जुड़ी हुई है वो हिंसा अहिंसा की जुड़ी हुई है। और जैन दर्शन का पन्ना पन्ना हमको ये कह रहा है, जितना हो सके उतना अहिंसा की ओर आप आगे बढ़ना। बराबर है। देवता लोगों के साथ ये समस्या नहीं है, उनकी पूजाओं में हिंसा नहीं होती है। वे फूल भी लेके जाते हैं तो आपको कल्प वृक्षों के फूल होते हैं, और वे कल्प वृक्ष शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी कायक होते हैं, जड़ होते हैं, मतलब उसमें जीव राशि नहीं होती है। उनके फूल जो हैं मुरझाते नहीं हैं, उनके फूलों में कीड़े नहीं पड़ते हैं, उनमें चींटियां नहीं लगती हैं उनके फूलों में। मतलब नीट एंड क्लीन मामला है पूरा देवताओं का। मनुष्यों के साथ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं। सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ जीव राशि बहुत हो जाती है। जीव राशि बहुत होने से हमने रात्रि भोजन का निषेध किया। रात्रि भोजन के साथ हमने द्रव्य पूजा का निषेध किया। भाव पूजा का निषेध शास्त्रों में नहीं आता है। आप आधी रात को 2 बजे भी जग गए हो, बिना सामग्री के आप पूजा कर सकते हैं। आप पढ़ते जाइए पूजा को, अर्घ मत चढ़ाइए। आपने अर्घ भी चढ़ाना है तो भाव अर्घ चढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है। बात ये थी, जिस क्रिया से हिंसा ना हो उस क्रिया का निषेध जैन शास्त्रों में नहीं है। जिस क्रिया से हिंसा की संभावना हो उसका निषेध है। और उसमें भी जब हम रिचुअल्स में जाएंगे तो हर एक मत संप्रदाय के थोड़े थोड़े मत भिन्नता के साथ आपको मिल सकते हैं, लेकिन वहां भी भावना सबकी एक ही है कि जिस जिस प्रकार से हम भगवान को। और जैन दर्शन की एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था मेरे को पढ़ते पढ़ते, मैं त्रिलोक पंडित ही पढ़ रहा था ये ग्रंथ अपना, उसमें आया प्रश्न कि यार भगवान को इतनी पूजा की क्या जरूरत है कि देवता की स्थापना कर रहे हैं तो भगवान इतना क्यों पूजना चाहते हैं। तो समाधान दिया है, ये जैन दर्शन चल रहा है भैया। यहाँ भगवान नहीं पूजना चाहते हैं। भगवान अपने उपदेश में नहीं कहते हैं हमें पूजो। ये तो हम भगवान को देखकर आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम पूजा कर रहे हैं, और हम पूजा भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हम जो सामग्री लेके जाते हैं, अन्य मतों में तो स्पष्ट ये सामग्री जाती है भगवान के लिए जाती है। थोड़ा सा भगवान भोग लगाते हैं और फिर वो बाद में प्रसाद के रूप में जनता उसे ग्रहण करती है। हम जो सामग्री लेके जाते हैं वो भगवान को खिलाने थोड़ी ले जाते हैं। जल चंदन अक्षत जो कुछ भी पढ़ाते हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी मतपन संप्रदाय पूजन कर रही है, वो पूजन सामग्री को भगवान को खिला नहीं रहे हैं। वो तो सामग्री के सहारे से, हम बिना सामग्री के जाएंगे 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएंगे। सामग्री हमारे साथ होगी, थोड़ा सा टाइम वहां लग सकता है, तो हम अधिक समय तक भगवान के नजदीक रहें। इसलिए अष्टद्रव्य की विधान है। अष्टद्रव्य में भी जो है कोशिश यही की जाती है जैन जैन दर्शन में, कि जहां जहां एक सूत्र है, सावध लेशो बहुपुण्य राशि। हिंसा कम से कम हो और पुण्य ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी क्रिया आप कर सकते हैं। ऐसी क्रिया मत करना जिसमें हिंसा ज्यादा हो और पुण्य कम हो। व्यापार का भी यही नियम है, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। अगर ऐसा व्यापार करेंगे जिसमें लॉस ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो तो क्या होगा। तो हम ऐसी क्रियाओं को प्रमोट नहीं करते हैं जिसमें हिंसा ज्यादा होती है। हम ऐसी क्रियाएं रखते हैं जिसमें हिंसा कम होती है। और वीतरागता, जैसे रथ यात्रा निकालते हैं, अब थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी, निकालेंगे, रोड पे निकलेंगे, जीव राशि थोड़ा बहुत तो कष्ट पहुंचेगा किसी न किसी को, लेकिन उसके बदले में पुण्य बहुत होता है, तो हम उसे रख लेते हैं। फिर हम ऐसी क्रियाएं चुने जिसमें सावध दिलेश हो। आपका प्रश्न तो पूजन से था, आप 24 घंटे में कभी भी पूजन कर सकते हैं। भाव पूजन करने में कोई मनाही नहीं है। और भाव पूजन भी माने हाथ जोड़ना भी मालूम है आपको, द्रव्य पूजन है, शास्त्र के आधार से बोल रहा हूँ। शिरोन्नति करना द्रव्य पूजन है, आवर्त करना द्रव्य पूजन है, प्रदक्षिणा देना द्रव्य पूजन है। हम क्या समझते हैं, सामग्री के साथ में करना वो द्रव्य पूजन है। सामग्री के साथ में करना द्रव्य पूजन तो आपसे उपचार से द्रव्य पूजन है। वो मन में विचार करना वो भाव पूजन है। और शरीर को उसमें इन्वॉल्व करना, हाथ जोड़ना, धोख देना, ये द्रव्य पूजन है। सामग्री के साथ में की जाने वाली पूजा को भी द्रव्य पूजन कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे YouTube पे आया है, व्हेन पीपल से वी कैन नॉट स्लीप, जब सिर अपना नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, क्या ये सेम थिंग भगवान की मूर्ति के साथ भी है, और उसको किधर फेस करना चाहिए? देखो, मैं क्या बोलूं, जगत में इतनी तरह की मान्यताएं प्रचलित हो जाती हैं कि नई मान्यता हम जब सुनते हैं तो पुरानी मान्यता टकराती है। जब हम मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो वहां ये सब चीजें बहुत गौण हो जाएंगी।
मुनिराज विहार करते हैं। विहार करते करते आप प्राचीन काल की कल्पना कीजिए, वन खंडादि में ठहर जाते थे, वन खंडादि में भी ठहरने के बाद विश्राम आदि करते थे। तो ऐसा कोई त्रिकाल नियम नहीं है कि जो साउथ की ओर मुख करके सोएगा उसे नींद नहीं आएगी। अब ट्रेन जो चलती हैं वो कौन सी दिशा में चलती हैं? तो ट्रेन में आप सोते हो कि नहीं सोते हो? धरती पर कितने बिल्डिंगें हैं, कितनी रचनाएं हैं जो आपके लिए पूर्व है, भाई साहब, सामने के लिए पश्चिम है। अब क्या करोगे? आप भरत क्षेत्र में खड़े होकर देखोगे, एरावत क्षेत्र में खड़े होकर देखोगे। कहने का अर्थ यह है कि बहुत बारीकी में आप ना जाएं। हाँ, इतना जरूर है कि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं समोसरण में, प्रतिमा वास्तव में एक ही दिशा में होता है, लेकिन आपको चारों तरफ उनके मुख दिखाई देते हैं। और ये नंदीश्वर की रचना तो चारों दिशाओं में है, हम वंदना भी चारों दिशाओं को करते हैं। मुख्य रूप से पूर्व और उत्तर दिशा को प्रमोट किया गया है, जिसका कारण हमने पहले आपसे चर्चा में कर लिया गया है। एक क्विक क्वेश्चन था कि सिद्ध मूर्ति है या आर्यंत मूर्ति है वहां पे? आ, पहले मैंने अरहंतों की चर्चा सुनी थी, और अभी कुछ दिनों से कुछ चर्चाओं में सिद्धों की भी आई है। एक्यूरेट वहाँ क्या परिस्थिति है, मैं और उसकी जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रतिमाएं हैं, जिनबिंब हैं, इतना पक्का है। और जहां तक है, जिनबिंब जो होते हैं अरहंतों के ही मुख्य रूप से होते हैं, क्योंकि सिद्ध जो होते हैं वो निराकार होते हैं। वहां ये लाल नख, मुख, नयन, श्याम और श्वेत है, ये रचनाएं संभव नहीं हो पाती हैं। क्योंकि सिद्ध जो है ना, आपसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सिद्धों को आप पहचानो तो कैसे पहचानेंगे? अरहंतों को तो आप पहचानोगे आकार से, सिद्धों को कैसे पहचानोगे? तो सिद्धों का आकार नहीं होता है। तो इसलिए प्रतिमाएं जहां जहां भी हैं, जितनी भी हैं, मुख्य रूप से अरहंतों की हैं। क्योंकि सिद्ध परिपूर्ण अवस्था है, सिद्ध पूर्ण अवस्था है, तो सिद्धों की चर्चाएं भी हैं, सिद्धों की बात भी की गई है शास्त्रों में। वो इसलिए की गई, अंतिम लक्ष्य हमारा सिद्ध है, अरहंत हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। अरहंतों से तो हमें दिव्य ध्वनि की प्राप्ति हुई है, इसलिए विशेष रूप से हम उनसे जुड़ गए हैं। वास्तव में आदर्श स्थिति जो है वो सिद्धत्व की है, वहां सभी प्रकार के कर्मों का अभाव हो गया है। यहाँ पे आर शाह आईपैड, उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है काफी देर से, अगर उन्हें क्वेश्चन करना है तो। जय जिनेन, जय थैंक जिनेन। यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि नंदीश्वर द्वीप में जो चारों दिशा में चारों निकाय के देव जाते हैं पूजा करने के लिए, तो भाव पूजा करते हैं ना, वहाँ द्रव्य तो नहीं होता है ना? नहीं, उनमें से द्रव्य ले जा सकते हैं, वो कल्प वृक्षों के पुष्प ले जा सकते हैं, वो अपनी सामग्री ले जा सकते हैं, संभावना है। वहाँ फिर प्रासुक जल वगैरह कैसे मिलता है वहाँ पे? उन सब प्रासुक ही रहता है उनके पास तो। वे सब प्रासुक ही रहते हैं, उनको थोड़ी चावल धोने हैं। उनको तो अकेले पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्प भी लेकर, रत्नमयी पुष्प ले गए और रत्नमयी पुष्प चढ़ा दिए। उनको थोड़ी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, इतने इतने विधि पूर्वक और इतने तरीकों जो हमने विकसित की हैं पूजाओं की पद्धतियां, हाँ। वो पद्धतियां देवों की नहीं होती हैं। भाव ये है कि कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए ना, तो वे कल्प वृक्षों के पुष्पों को लेकर के जाते हैं और वो पुष्प अर्पित कर देते हैं। और इसमें भी बहुत क्लियर है कि हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सब अपने लिए करते हैं। भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, एक दाना नहीं लेते हैं आपका, आप अपने पास संभालो, धोखे मत रहना। हमने भगवान को कुछ दिया, हमने भगवान से लिया ही लिया है। वीतरागता, सदुपदेश, दया, करुणा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी समझो जैनाई जो चल रही है पूरे, समझो विश्व में, इसको जैन दर्शन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। एक आध दिन में अपन चर्चा करेंगे इस पे भी, कि सच में हमको किस तरह से जैनिज्म को बच्चे बच्चे तक पहुंचे। हमारे पास विश्व का अद्वितीय माल है, अद्वितीय खजाना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम विश्व के जनता तक नहीं पहुंच पाए। सर्वोदयी मार्ग हमारे पास है। कोई भी प्राणी सुने, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का जैन दर्शन सुने, उसको कभी ये डाउट नहीं हो सकता है हमारे लिए नहीं है। हम किसी अन्य मत को सुने तो हो सकता है ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिन मत में तो प्राणी मात्र के लिए हितकारी उपदेश है। इसलिए देवता हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, नारकी हो, सबके मार्ग एक जैसे ही हैं। व्यवहारिक रूपताएं परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग दिखती हैं, अंतर यात्रा एक जैसी है सभी मोक्ष मार्गियों की। जय जिनेन पंडित जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। आज का टाइम हो गया है। एक दो प्रश्न और हैं, वो लोग आप लोग कल पूछ लीजिएगा वो प्रश्न। कुछ मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड हैं और कुछ अपने एक योजन लंबा जो है उससे रिलेटेड पूरा है माप से।
तो वो कल पूछ लेंगे। क्विकली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जैना रिलीजियस कमेटी के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ जैना लीडरशिप वी आर डूइंग दिस लेक्चर सीरीज. Definitely we need support from you guys, so we need donors there. If you can donate, I would like to announce one name, Kishore Bhai and Nimita Ben Shah. They donated $151 for this cause, which is really appreciated. Thank you very much. I have posted the Zelle payment information in the chat, as well as it is displayed on the screen. Or if you need any information, you can talk to me or Jatin Bhai, and we will able to help you out on that. विपिन जी, आप जिनवानी स्तुति लेंगे. जय जय. निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है.